नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे रीमेकिंग द ट्रुथ सच को फिर से बताना। इसलिए हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम हमारे मैम से बात करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और 3 जनरेशन उन्होंने देखा है। तो कुछ बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जनरेशन को क्या करना चाहिए और उनके पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए उनके साथ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई हैव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस with interacting students on various topics. One is very sensitive nowadays that students get depressed, disappointed, demotivated because of the competitive world in which we are living around. And it is very difficult to survive and have consistency in the career or profession or in the field of education in which they are trying to pursue, because now only there are well-known reputed professions so far like doctors, engineers, chartered accountants or in aviation industries, but apart from that also there are many fields about which neither parents are aware nor the students are aware. Of course nowadays there are counseling centers at many places, but hardly anyone goes there for taking proper counseling regarding their career, and parents also expect too much sometimes from their from their wards, and if their children are not performing as per their expectation, then children get into depression. There is a lack of proper and healthy communication between parents and children, which is the main cause. If a child is not able to clear certain competitive exams or not able to capture the job in which their parents are depicting them, it is a problem of parents. It should not be the problem of the student or a child. So before understanding the caliber, capacity, background and his intelligence, no one should force anybody for anything. And even parents are expecting something from the child, and if child is not able to come up to their expectation, he should not be held responsible for anything, because after all it is his life. He has to live in his own way, but there should be proper and healthy communication between a child and parents. If the parents are encouraging, then only a child gets motivated, otherwise he become introvert. He cut off himself or herself from the friends, parents, family members, and as a result many suicides are taking place these days. Now sometimes mobile impact is also there. Now we have heard about bad impact of blue whale game on the mobile. So many intelligent, so-called scholarly students have done suicide after watching these things. And when both the parents are working, nobody is there to look after the child, then parents hardly understand what a child is doing in their absence. And if child is also not telling them what he's doing, or even if he come across such unhealthy situation or any problem, the child is not getting courage to speak out to the parents for asking help. So there is no trust of a child on a parent, neither parents have a trust on a child. So basically it is a communication gap, and everyone should be given freedom, and they should, students specifically of teenage, should be encouraged to do whatever they want to pursue instead of them forcing that you have to pursue this career, you have to get so many marks. This should not happen, because in all other Western countries you can see there is a lot of change in the educational pattern. Now we are going to implement same thing in education policy, especially brought for this only, to reduce the burden of subjects and to give creativity to a child in which they can pursue their future. So I think everyone should attend that workshop. There are many online workshops. Even schools and colleges conduct programs on new education policy. There is awareness on various news channels as well as in newspapers. So make it sure that your child is not having any such trauma, any such negativity or depression in their mind, and have a healthy, friendly atmosphere with your son or daughter. This will help you. मैम ये बहुत लॉन्ग हो गया है, इसको कट कर दो। हिंदी में बात करें थोड़ा सा। अच्छा हिंदी में। ओके। आपने जैसे बात किया पेरेंट्स के बारे में,
सो उसी पे एक हमारा क्वेश्चन है कि परसेंटेज और पर्सनालिटी। हमने सुना है कि आजकल ऐसा सोसाइटी में होता है कि पेरेंट्स सिर्फ परसेंटेज को देखते हैं, पर्सनालिटी को नहीं। जो 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट है उसे 93.5% लाके क्या ही मिलेगा जब उसका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप ही नहीं है। मतलब अगर वो मेंटली इतना अनस्टेबल है तो वो 93.5 क्या करेगा? सेम थिंग, मैं वही चीज़ बताना चाहती हूँ ना कि तुम्हारे एग्ज़ाम के मार्क्स लाइफ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं है। लाइफ के एग्ज़ाम में बच्चे को अलग अलग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, इवन पेरेंट्स को अलग अलग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो जैसे ही वक्त चेंज हो रहा है उस हिसाब से सबको अपनी मेंटेलिटी में और स्टूडेंट बच्चों के अपब्रिंगिंग में फ़र्क लाना चाहिए। एज मुझे मालूम है जब मैं छोटी थी तब से अभी तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई भी प्रेशर नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। खाली उन्होंने इतना बोला कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, हम आपको सर्टन एक्सटेंट तक ही सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद तुमको यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर। ये तो हमारे पास थी, तो सिंसियरिटी हमारे पास थी ही। हम लोग पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है ऐसा तभी नहीं लगता था, लेकिन अभी ये जब स्टूडेंट्स का मैं रिजल्ट और पेरेंट्स का एटीट्यूड देखते तो लगते हम तो अबव एवरेज थे। बट ऐसा भी नहीं है ना कि हम, क्योंकि हमको फ्रीडम दिया गया तो हम मन से पढ़ते गए, जो भी किया मन से किया। अभी मेरे बच्चों को भी मैंने बोला है कि मैंने जितनी डिग्रीज ली है या जो एकेडमिक सक्सेस मैंने पाया है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सेम काइंड ऑफ सक्सेस और इक्विवेलेंट सक्सेस ऑल्सो फ्रॉम यू। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट, बट आफ्टर सर्टन एज, say for example after crossing 21 years, don't ask your parents to give anything. You have to be independent. Don't give us at the same time anything to us. We are self-sufficient. We have made provisions for us. Yes. So we are not expecting you and we are not upbringing you considering that our future is in you. You will give us bread and butter. You will take care of our health. No. We have changed our mindset looking into this. हमने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया है सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए। तो सब पेरेंट्स ने ये किया ना तो 50% तो एटलीस्ट सुसाइड बंद हो जाएंगे। और आपके बेटा या बेटियों के जो दोस्त हैं ना, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। दिन भर में आने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट का तो कॉन्वर्सेशन होना चाहिए पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में कि आज दिन भर में तुमने क्या किया। तो ये शेयरिंग होता है तो केयरिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। जहाँ पे शेयरिंग ही नहीं वहाँ पे केयरिंग भी नहीं होता। ओनली केयरिंग इज ऑल्सो डेंजरस एंड ओनली शेयरिंग इज ऑल्सो नॉट यूजफुल। तो ये है कि आप अपब्रिंगिंग में और मेंटालिटी में फर्क आना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये केसेस इंडिया में ज़्यादातर हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी हो रहे हैं। मैम महाराष्ट्र पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर में सुसाइड में। हर डे 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं और हर ईयर 35,000 से ज़्यादा। और जैसे जीडीपी बढ़ रही है और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इंडिया की, उसी तरह ये ग्रेड भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं सोच रहे इसके बारे में। और पेरेंट्स को बस ये चाहिए कि जैसे हम आपसे 3-4 बार मिले, आपने कहा है कि छत्रपति चाहिए तो दूसरे के घर चाहिए, हमारे नहीं। कलाम चाहिए तो दूसरे के घर चाहिए, हमारे नहीं। तो उन्हें अपने घर में क्या चाहिए? उन्हें अपने घर में एक चाहिए भाई, रॉयल जॉब मेरा बच्चा करेगा, वो 1-2 लाख की पगार लाएगा, चाहे रिश्वत लेके लाए या अपनी कमाई से लाए, बट हमको वाइट कॉलर जिंदगी जीना है, हम लोग को टॉप क्लास देखना है। सबने मुझे प्राउड होना चाहिए कि मेरे बेटा देखो मेरे लिए कार खरीद के लाया, आज वो मेरे को ये हिल स्टेशन पे छोड़ने गया था, मेरे बर्थडे पे उसने इतना महंगा गिफ्ट दिया। ये नहीं होना चाहिए। इवन बच्चों ने भी अपना बर्थडे मनाते समय पेरेंट्स को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये गिफ्ट दे दो, मुझे ये तोहफा दे दो, मुझे 50,000 दे दो, मुझे XYZ होटल में जाके बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है। दिस इज़ वेरी बैड ट्रेंड। आपके हैप्पी बर्थडे करो, केक काटो, ठीक है, किसी को अच्छा लगता है काटे, पर हमारा जो कल्चर है वो नर्चर नहीं हो रहा है ना। हम वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना रहे कि हमारा कल्चर ही हम लोग भूल गए। बर्थडे पे नॉर्मली हम बच्चे की बच्चों को दिया उसके सामने चढ़ाते, ज्योति उसकी आरती करते हैं, उसकी जिंदगी की शुभकामनाएं उसको देते हैं। वो कितने घरों में होता है आजकल। मैम आपने एक बहुत अच्छा कोटेशन बोला था जिससे मेरा पूरा घर 1 मिनट के लिए रुक गया था। तो कोटेशन आप फिर से वो जो आपने बताया था ना कि जिस दिन आपका बर्थडे आता है। वो देखो, अभी बर्थडे की जहाँ तक बात आती है, मुझे एक बहुत अच्छा
इंसिडेंट्स मेमोरी में है जब अपने एक्स प्रेसिडेंट लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब विदेश यात्रा में गए थे, तो उनको एक पत्रकारों ने, मतलब उनको नहीं, सभी उपस्थित मान्यवरों को एक प्रश्न पूछा था कि आपके हिसाब से बर्थडे क्या है। तो बहुत लोगों ने बोला कि इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट, हम लोग पार्टी करते हैं, पार्टी देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हमको मिलते हैं, हम पेरेंट्स को जो चाहे वो पेरेंट्स उस दिन हमारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, उस दिन कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन अब्दुल कलाम चुप बैठे थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो उनको पूछा भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि देखो, बर्थडे इज द ओनली डे व्हेन यू क्राई एंड योर मदर स्माइल्स। आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर अ चाइल्ड क्राई, मदर नेवर स्माइल्स। तो आई थिंक ये है ना, अपनी मम्मी डैडी को आई मीन याद करने का दिन है, खास करके मम्मी को जो जिसने आपको इन दुनिया में प्रवेश दिया है, कुछ का दिखाने का मौका दिया है, तो उनको याद करने का और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड मैं मीन आपको देना चाहिए। ना कि मैं आज 20 साल का हो गया, मैं 21 साल का हो गया, अभी मैं ए सर्टिफिकेट पिक्चर देख सकता हूँ, अभी मैं पब में जा सकता हूँ। नो, दिस शुड नॉट हैपन। एज एज ग्रोज योर मैच्योरिटी शुड आल्सो इंक्रीज। वो मैच्योरिटी इंक्रीज नहीं होती है तो एज हैज नो मीनिंग ना। तो दैट इज, और वो इसीलिए पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग एंड फ्रेंड्स of our child are very important. So have a proper communication freedom to the friends of your child as well as give freedom to your child and have a conversation every day. Even if you are out of station, make it a point that every day at least 10 minutes you will interact with your child. पॉडकास्ट थोड़ा अब नॉलेजेबल करते हैं। ओके, जैसे हमें पता है कि आपको बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो मैम, अभी हम ना पॉडकास्ट को थोड़ा नॉलेजेबल लिख देते हैं कि आज के यंग यूथ को, कि आज के यंग यूथ कौन सी बुक्स पढ़े। जैसे आपको हमें बताया कि आपको 30 ईयर से ज़्यादा नॉलेज है बुक्स के बारे में। सो आपने अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी बुक पढ़ी है जिसके बाद आपको ना जो मैंटेलिटी थी ना लोगों को देखने का, और आपका जो अंदर का माइंडसेट था बहुत चेंज होगा। जैसे मैंने देखी थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी सोसाइटी के बारे में। तो उसके बाद उसे पढ़ने के बाद ना मुझे रियलिटी समझ में आई कि आप लाइफ में हर एक को खुश नहीं रख सकते हो, सोसाइटी में कोई भी रहे। तो आपने ऐसी कौन सी बुक पढ़ी थी? देखो, एक बुक का मैं नहीं जिक्र करूंगी, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज भी पढ़ी है, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के वो पर्सन्स थे। कोई लिटरेचर से था, कोई बैंकिंग इंडस्ट्रीज में था, कोई एक एंटरप्रेन्योर था, कोई टीचर था, कोई एक कॉमन वुमन थी, कोई घर में काम करने वाली थी। तो ऐसे सब मैंने बायोग्राफीज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ी। डिफरेंट लैंग्वेज मतलब 3 लैंग्वेज ही, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ये 3 लैंग्वेज मैंने काफ़ी पढ़ा था। जब मैं लाइब्रेरी की मेंबर थी, मैं तब यहाँ वर्किंग फील्ड में नहीं थी, तभी मैंने पढ़ा, तो उनसे इंस्पिरेशन काफ़ी मिला। और सॉफ्ट स्किल के बारे में, आजकल तुम इसको सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, हमारे ज़माने में मोटिवेशनल ही बोलते थे, मोटिवेशनल स्पीकर। आजकल भी है मोटिवेशनल स्पीकर, बट ना अभी इसको सॉफ्ट स्किल भी बोलते हैं। तो ऐसे ना लेक्चर्स हमारे यहाँ बहुत होते थे, अभी भी होते हैं, विच इज़ ओपन टू एवरीबडी। ऐसे एक सर्टन उनका वीक होता है दिसंबर एंड या जनवरी में, जिसमें बुक एग्जीबिशन भी होता है, और बहुत एमिनेंट पर्सनालिटी जो लिटरेचर से रिलेटेड भी नहीं होती तो भी उनको बुलाया जाता है और उनसे बातचीत होती है, जिसमें हमको भी पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो कल्चरल वाइज हमारी एरिया बहुत अच्छी है। इवन बुक्स के फील्ड में भी मेरे घर में भी खुद का एक कलेक्शन था। मेरे पिताजी को बहुत आदत थी पढ़ने की, तो उन्होंने हमारे पास ढेर सारी किताबें लाई थी, हम लोग पढ़ते थे। रोज वो आते थे जब वापस अपने जॉब से, तो उनके हाथ में कितना पूरा बंच रहता था न्यूज़पेपर का, मैगजीन का। तो हम अपने मेन डोर पे खड़े रहते थे कि बाबा पहले कौन लेगा, बिकॉज उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। फिर हम लोग वो पहले पढ़ते थे। और मेरी ग्रैंडी, अभी वो देखो, जब वो एक्सपायर हो गई 1984 में, तभी वो 90 प्लस थी। तो उसके पहले कि वो, भले उसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, पर वो इंग्लिश भी जानती थी, पढ़ती थी, बोल भी सकती थी। तो मतलब हमारे घर में ऐसा इलिटरेट या मातृभाषा से अलग कोई भाषा नहीं बोल सकता, ये बैरियर कभी नहीं था। मेरे पेरेंट्स में नेचुरली पढ़े लिखे थे,
भले उनका अभी के ज़माने में देखेंगे तो इतना कोई खास बड़ा डिग्री नहीं था, बट जो नॉलेज उनको था, जो मातृभाषा तो आती है, साथ में हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो मैंने खुद वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ाई की है अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड से जब पूरा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता है तो हमें कभी दिक्कत नहीं महसूस हुई। कभी मुझे नहीं याद रहता कि मैंने कोई डिक्शनरी खोली है और देखा है कि भाई ये बुक का ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वो नॉलेज से वेल इक्विप्ड थे। तो उस तरह से वो हेल्थी एटमॉस्फेयर मेरे घर में था, वैसे हेल्थी एटमॉस्फेयर मैंने मेरे बच्चों को भी दिया, और वैसे हेल्थी एटमॉस्फेयर मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को मिले, फ्रीडम। और बुक चॉइस, आप कोई भी लाइब्रेरी में जाओ, पब्लिक लाइब्रेरी उसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है जहाँ पे ये सब बुक्स मिलती है आपको, तो एडवांटेज आप ले लो। वहाँ पे नॉर्मली बहुत सारी लैंग्वेजेस की बुक होती है पब्लिक लाइब्रेरीज में, तो आपको जो लैंग्वेज कन्वीनियंट लगती है आप पढ़ो, बट पढ़ो। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, वाचाल तर वाचाल, सो इफ यू रीड यू विल सर्वाइव। सो जैसे फूड क्लोथिंग शेल्टर बोलते हैं ना, जैसे नॉलेज भी अपना एक वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमको ब्रेन दिया गया है, तो ब्रेन को हम क्या फीड करते हैं उस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है। ब्रेन को आप अच्छा खुराक दोगे तो हेल्दी थॉट्स आएंगे, अगर अच्छा खुराक नहीं दोगे, सारा पूरा टाइम मोबाइल पे लगे रहेंगे, ये अपना इंस्टा पे फेसबुक पे रहेंगे, तो उतना ही नॉलेज होगा नहीं होगा ना। तो एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। इसके बारे में बात करना था। आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा इंस्टा इन सब में पड़ गई है, तो आपको क्या लगता है ये मतलब आगे चल के 10 सालों में क्या होगा, जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनका और जो इंस्टाग्राम में या फोन्स में लगे रहते हैं? देखो, मैं नहीं बोलती कि जो सोशल मीडिया से वो खराब है या उसमें नहीं होना चाहिए, बट देखो जहाँ पे कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है ना, उधर उसका असर चला जाता है। हाँ। तो अभी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया सोशल मीडिया से, तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं। तो जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन दी जाती है वो 100% ऑथेंटिक नहीं होती है, तो हाँ। उसकी ऑथेंटिसिटी आपको बुक्स में या तो जर्नल्स में opinions है उसमें ही मिलेगी ऑथेंटिसिटी। सिमिलरली जो करंट डेवलपमेंट है वो भी आपको जर्नल्स में मिलेगी, न्यूज़ में मिलेगी, वो तो कोई बुक फॉर्म में या कोई यूट्यूब में मिलेगी नहीं, क्योंकि वो 100% गलत भी नहीं होती है, पर 100% ऑथेंटिक भी नहीं होती है। तो ऑथेंटिसिटी जानने के लिए तो नॉलेज इज़ द बेस्ट। और वो देखो, बुक है या कोई भी प्रिंट मीडिया है, उसको पढ़ने के लिए आपको कोई एक्सेसरीज नहीं लगती है, लेटे हुए बैठे हुए पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए आपको मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, फिर आपको ईयरफोन डालने पड़ते हैं कि दूसरों को तकलीफ नहीं हो जाए। तो ये सब है। सोशल मीडिया होना ज़रूरी भी है, बट ज़्यादा एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि इंडिया में जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएटेड के बाद वो इतना ज़्यादातर ना मेजॉरिटी लोग ना जॉबलेस हो जाते हैं, क्यों मैम? देखो, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमारी जो सिस्टम है ना, उसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है बच्चों को। तो इसके लिए जो स्किल्स होता है, अभी देखो आप देखेंगे बीएससी का बच्चा होता है वो भी बैंक में अकाउंटेंट का काम करता है। हाँ। जो बीकॉम होता है वो कहीं और जगह पे क्लर्क का काम करता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, जॉब्स लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये प्रोफेशनल या करियर ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है। एक आप इंजीनियरिंग या मेडिसिन या ऐसी कोई एविएशन इंडस्ट्री ये सब छोड़ेंगे ना, तो वहाँ पे करियर ऑप्शंस नहीं ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से आप पढ़ते एक चीज़ हो और करते हो एक चीज़। तो यही तो है कि हमारे पास नॉलेज है, ब्रेन है, पर प्रॉपर उसका मोल्ड करने की क्षमता नहीं हमको, उसमें वो कन्वर्ट इनटू प्रॉपर रिसोर्सेज, जो हम लोग बोलते हैं एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर वे, सो दैट इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप हवा से भी पैदा करते हैं लाइट एनर्जी, पानी से भी कर सकते हैं, तो मतलब उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, तभी तो उनकी एनर्जी क्रिएट होती है। उस हिसाब से हमारे पास नॉलेज है, ब्रेन है, सब है, बट वो माइंडसेट नहीं है। और वो जो बोलती है ना कि विजन होनी चाहिए, वो थोड़ी सी कम है, जो बढ़ानी चाहिए, जो अभी बढ़ रही है। अभी लास्ट 10 साल में थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एफर्ट्स होना चाहिए तो वो ज़्यादा हो रहा है,
उसको जो भी गवर्नमेंट आएगी, हमको कोई गवर्नमेंट से लेना देना है नहीं, बट जो भी गवर्नमेंट आएगी उन्होंने यही चीज करना चाहिए कि राजनीति छोड़ के पहले देश का विकास और कैसे हो, क्योंकि अभी अमेरिका में आपको मालूम है सिलिकॉन वैली इज ओनली नोन फॉर इंडियंस, 90% आर वर्किंग इन सिलिकॉन वैली, वेयर दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, एजुकेशन लेके उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिला या प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिला, उसके लिए तो वो अब्रॉड गए। तो आज अमेरिका में, यूएसए में ये कमी है स्किल की और नॉलेज की, इसके लिए तो इंडियंस को डिमांड है। तो आफ्टर सर्टन ईयर्स जब उनकी जनरेशन वहाँ पे पल रही है तो वही वो जॉब में चली जा सकती है ना, फिर वहाँ पे भी स्टैग्नेशन आएगा। इंडिया में तो ऑलरेडी है, तो ये तो विशेष सर्कल है, तो ये ब्रेक करना है तो सबको एफर्ट्स लेने हैं, इसमें कोई एक चीज़ का रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, टीचर्स का रोल है, स्टूडेंट्स का रोल है, अपनी सोसाइटी जहाँ पे हम लोग पले बड़े हैं उसका भी रोल है, सबका सब लोग जब कंट्रीब्यूट करेंगे तब देश बनता है। अभी हमने इंडिया में आए हैं तो मुझे ना हमारी पूरी टीम को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और जब से हम सर्च कर रहे हैं इस पॉडकास्ट से पहले हमारी पूरी टीम ने बहुत सर्च किया है, हमें एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि जो पहले था वो अब नहीं रहा, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सब हमसे ज़्यादा बाहर की कंट्रीज देखती है। जैसे महाभारत से आजकल लोग ना बिजनेस के स्किल्स लेते हैं, और रामायण ये सब देख के ना उन्हें बहुत ज़्यादा होता है, बट हमारे इंडिया में ये सब एक तरह से एजुकेटेड नहीं करते हैं अपने बच्चों को। क्यों मैम? वही तो मैं बोलती हूँ कि भाई अभी चाणक्य नीति बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको एक पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, एक इकोनॉमी देश की होती है या एक स्टेट की होती है, कैसी चलानी चाहिए, कैसे इंटेलिजेंस को ढूंढना है, वो चाणक्य नीति बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, नहीं जानते हैं वो अभी फिर गोते मार रहे हैं। तो ये जो है ना, अभी रामायण महाभारत से हमको देखो, मन की शांति के लिए हम लोग बोलते हैं किधर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो तो अपने पास ही होती है। अपना लिटरेचर देखा जाए, एंशिएंट लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, तो वो इतना रिच है कि आज इतने हजारों साल के बाद भी हमको उसका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये साल में भी वो बहुत एप्लीकेबल है, आउटडेटेड नहीं हुआ है। तो इसके लिए जब यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन में जब बहुत मैकेनिज्म आ गया, इंटरेक्शन 1-to-1 लोगों का कम हो गया, तो वो अशांत जब होने लगे तो शांति का मार्ग ढूंढने के लिए तो वो इंडिया में आ गए, और इंडिया से उन्होंने इंडियन फिलॉसफी ली, और वही जाके हमारे जो बड़े बड़े महात्मा है उन्होंने उसी का तो प्रचार प्रसार किया, और वो लोग अभी अपने कल्चर को जब मान रहे तो हम बोलते हैं हाँ इंडियन कल्चर, मतलब जो बाहर का आदमी आके बताएगा भाई तुम्हारा कल्चर अच्छा है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप बोलते हैं हाँ अच्छा है। अपने पास जो है वो नहीं के बराबर ही है ना, जब तक हम लोग इसको रिकग्निशन नहीं देते हैं। बट ये मेंटालिटी बन गई है, जब बाहर वाला बोलेगा तुम्हारा बच्चा बहुत क्लेवर है तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ वाकई अच्छा है। सेम में हमारा कल्चर या लिटरेचर जो भी बाहर वाला बोलता है कि बहुत अच्छा है, उसे मन शांति मिलती है, तो फिर हम लोग बोलते हैं अच्छा। तो जो है ना सब हमारे अंदर ही है, हमको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, बस एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने परिवार में रखो, और बच्चों को भी अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, और वो तो कोई बाहर से आपको इम्पोज नहीं कर सकता है, इट शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड। मैम आपने काउंसलिंग का नाम लिया, अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिनके पेरेंट्स अभी, जैसे मेरी दोस्त बाहर बैठी है मंजीरी, उनका जब उन 10th में थे तो उनके साथ कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट, तो उनके मॉम डैड ने उन्हें समझने से ज़्यादा उन्हें काउंसलिंग में जाना प्रीफर समझा, और उन्होंने काउंसलिंग को बोला कि भाई सुनो, मतलब वो आजकल के पेरेंट्स ऐसे हो गए कि अपने बच्चों को समझना नहीं चाहते हैं, या उन्हें ज़्यादा ईजी लगता है। ज़्यादा इजी मतलब ना, अभी एडवाइसेस भी ऐसे दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा कि भाई इसको आप काउंसलिंग सेंटर में डालो, अगर बच्चा बहुत वायलेंट होता है या बहुत इंट्रोवर्ट होता है, तो एक बेस्ट वे है पेरेंट्स का कि भाई कुछ ये अजीब तरह से पेश आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। तो डॉक्टर के पास क्या होता है कि भाई ये उसका मानसिक प्रॉब्लम है
या उसका मेंटल प्रॉब्लम है, तो आप उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाओ। अभी मैम इसमें काउंसलिंग भी होता क्या है? डिफरेंट चीज़ है। देखो, साइकेट्रिस्ट होता है वो तुमको मन भी तुम्हारा जानता है, तुम्हारी समस्या जानता है, और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए तुम्हारा ब्रेन शांत करने के लिए कोई मेडिसिन भी देता है। Yes. काउंसलर होता है वो तो मेडिसिन नहीं दे सकता है, वो तो खाली तुम्हारी पर्सनल चीज़ें जानेगा और इस हिसाब से तुमको बोलेगा। बट देखो, सभी काउंसलर पे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई कोई काउंसलर ऐसे भी हो चुके हैं, ऐसे भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि वो वीक पॉइंट्स जो होते हैं ना बच्चों के या फैमिली के, वो हाँ। जानते हैं और उसके ऊपर उनको ही टॉर्चर शुरू कर देते हैं। तो आज आप अपने पर्सनल सीक्रेट्स है, जो भी पर्सनल फैमिली की प्रॉब्लम्स है या खुद की, किसी दूसरे को बताते हैं ना, तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए कि भाई ये ट्रस्ट वाली 100% है, वो अपने तक ही ये समस्या रखेगा या मेरी बातें अपने तक रखेगा। उसका तो एग्रीमेंट नहीं रहता है, कोई स्टैम्प पेपर पर आप नहीं लिखा देते, वो बोलता है ये सेशन दिया, मेरा सेशन का 1500 रुपया 2000 रुपया दे दो। तो पेरेंट्स जो अफोर्ड करते देते भी हैं, तो कहते भाई हमने तो ये भी किया, फिर भी नहीं सुधरता है, तो हम लोग क्या करें? क्यों जाते? उससे अच्छा ना 1-2 घंटा तुम अपने बच्चे के साथ बैठो, उसके मन में जो अशांति है, अनरेस्ट है, उसको पहचानो और उसके ऊपर उसको थोड़ा एटीट्यूड दे दो, अपनापन लगे उसको, वो होना चाहिए, वो देंगे तो मेरे ख्याल से कोई काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मेंटली मैड ही होगा तो बात अलग है, तो उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल और ये सब ट्रीटमेंट होती है। बट नॉर्मली जो डिप्रेशन आता है स्टूडेंट्स में, वो तो मानसिक ही होता है, मानसिक अशांति की वजह से। और वो अशांति क्यों पैदा होती है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली की कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे को समझते नहीं है, या बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया जो समाज के विरोध, या मतलब समाज में आम नहीं होता है, ऐसे आप पेरेंट्स को लगेगा तो उसको सप्रेस करते हैं, उसको बोलते कि नहीं पापा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो डिप्रेस हो जाता है बच्चा, डिप्रेस होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये नहीं करे ना, जब अच्छा डायलॉग होगा सबके बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा ना। उसके अच्छे दोस्त भी होंगे, उनको बोलो भाई ऐसा हो, मतलब दोस्तों की भी जिम्मेदारी है कि कोई तुम्हारा फ्रेंड ऐसे निगेटिविटी में जाता है या इंट्रोवर्ट हो जाता है या कभी वायलेंट हो जाता है, तो उसको शांति से लेके, भले उसके घर में नहीं जाओ, किसी एक जगह पे जाओ, मंदिर में जाओ, कोई और जू बीच पे जाओ, किधर भी जाओ जहाँ पे शांति मिलेगी, और उसके मन में जो चल रहा है उसको बाहर निकालो और उसको बोलो कि भाई ये चीज़ें तो सोच रहा है गलत है, उसका असर गलत हो जाएगा। तो उसके फ्रेंड्स उसको जितना सपोर्ट करेंगे ना, उतना सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है। ओके मैम, जैसे आपने बताया था मेडिटेशन, योगा, इनसे आपकी लाइफ बहुत चेंज हुई है। सो एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ चेंज हो सकती है? ऑफ कोर्स, जब मैंने आफ्टर मैं बोलूँ कि मैंने यंग एज में भी नहीं, लेट जब आई वॉज 45 ईयर्स ओल्ड, दैट टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम्स मेरे पर्सनल लाइफ में थे, मेरे मेरे फैमिली में भी थे, पर मतलब तभी मुझे ऐसा लगता था ना, एक एक पल जीना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। अभी ये तो मैं सब बाहर वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि हमारे में ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी अच्छा है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पहचाना कि भाई इसके लिए कुछ तो होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे में स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी, ऐसे लगता था मैं जॉब भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर उसने बोला कि अभी हमारे रिलेशंस तो अच्छे ही थे, फिर भी उसने मुझे बोला भाई काउंसलर के पास चलो चलो चलो, तो मैं गई। फोर्स किया आपने? हाँ, उसने बोला भाई चलो, अभी वो बोल रहा है तो नेचुरली हस्बैंड 10 बार बोलेगा तो एक बार तो मुझे सुनना ही पड़ेगा ना, ऐसे नहीं बोल सकती तुझे भी समझना नहीं है। तो मैं गई वो काउंसलर के पास, उसका चार्जेस बहुत बड़ा था, मैं बोली उससे मेरे को और शौक लगेगा और मुझे और ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी उसका चार्जेस सुन के। फिर वो बोला चलो मैं अफोर्ड करता हूँ, चल तू। मैं गई, फिर उसने बोला कि भाई आप अकेले रह जाओ, आप मेरे हस्बैंड को बोला आप इधर से निकल जाओ। तो मैंने बोला क्यों मेरे हस्बैंड को निकल जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड को सब कुछ मालूम है मेरे साथ, मेरे बारे में, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, तो उनसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है ना मुझे। और आप तो अजनबी हैं मेरे लिए, अभी अभी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर भी 100% विश्वास करके मेरी सब लाइफ की बातें नहीं शेयर कर सकती ना।
तो फिर उसने बोला देखो वो तो करनी पड़ेगी। मैं बोली लेकिन वो मेरे डिसीजन है ना। पहले ही मीटिंग में, क्योंकि मैं मैच्योर थी, इसके लिए मैंने बोला मेरा हस्बैंड अगर जा रहा है तो मैं नहीं बैठूंगी। ऐसा नहीं कि मैं अकेले किसी को फेस नहीं कर सकती, पर मुझे ये अजीब सा लगा कि मेरा हस्बैंड मेरे को समझा पूछा के इधर लेके आया, तो दैट मीन्स उसको ही मैं बोले तो बाहर निकल जा और मैं मेरे बारे में बताऊं, आई माई माइंड डजंट परमिट मी। फिर उसने मुझे कुछ, मैंने थोड़ी सी बातें कह दी। ऑफ कोर्स जो मेन प्रॉब्लम था मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे उसका एटीट्यूड ही खराब लगा। फिर बाद में उसने क्या किया, मुझे कुछ म्यूजिक सुनने को दिया, आंख बंद करने को बोला, ये बोला कुछ कुछ बोला। ऐसे में 1 घंटा निकल गया। निकलने के बाद बोलते हैं और कंटिन्यू करना है। मैं बोली नहीं पापा मुझे घर जाके बाकी भी काम करने हैं। और उसका घर भी ऐसी जगह पे था जहाँ से ट्रैफिक बहुत था, रिक्शा मिलने का और ये मतलब प्रॉब्लम होता था। मैंने बोला नहीं अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो हम बोला ठीक है। तो उसका एक सेशन का फीस था 2500 रुपया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तुमने 2500 दे के क्या हासिल किया, मेरे में क्या तुमको फर्क लगने वाला है। तो ये 2500 मैं किसी और के दे देती या मेरे पे उड़ाती थी तो मेरे को ज्यादा खुशी होती थी, जबकि वो क्वालिफाइड है भी नहीं। क्वालिफाइड भी नहीं थे। हाँ मतलब अभी मैंने तो नहीं बोला उसको सर्टिफिकेट दिखा दे तेरा, बट मतलब ट्रस्ट क्या है उसके पास, प्रॉपर रिकॉग्निशन कुछ नहीं है ना। और मैं पराए आदमी को मेरा एट द एज ऑफ दिस व्हाई शुड आई टेल माय पर्सनल थिंग्स टू एनीबॉडी एल्स। तो फिर उसने बोला भाई तू बहुत समझदार है, मेरी इच्छा थी मैं लेके गया, और ये फोर्स तो नहीं करूँगा, तुझे जाना है तो जा नहीं तो मत जा। फिर मैंने अपने आप के साथ ही संवाद करना शुरू कर दिया। फिर आपका मेडिटेशन। हाँ फिर मैं बोली चलो भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन। अभी उसको आप बोलो या नाम, अभी मैं भगवान का नाम लेती इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में कुछ नहीं विचार आती है। मेरे मन में मैं जब नामस्मरण करती हूँ तो लाखों विचार आते भी हैं। पूरी तरह से मैं परमात्मा के साथ एकरूप नहीं होती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ना मेरे मन में जो हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स आते हैं या जो मेरे पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ उसका सोल्यूशन मुझे अचानक मिल जाता है। अरे ये तो इतनी सीधी बात है, ये मैं करूँगी तो मैं निकल जाऊंगी ये प्रॉब्लम से। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मैंने फिर वो ही कंटिन्यू किया। एंड टुडे आई कैन से कि मैं एबनॉर्मल तभी भी नहीं थी और अभी भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं तो 4 लोगों को जाके इंटरेक्ट करके उनके साथ बोल भी सकती हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती हूँ विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पर्सन। काउंसलेशन मैम, जो काउंसलर है फैमिली क्यों भेजती है उनको? वही तो ना कि भाभी टाइम, एक तो टाइम की बात है, टाइम नहीं होता है और जनरेशन गैप होती है। पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस अलग होता है, बच्चे का थॉट प्रोसेस अलग होता है। जब 2 थॉट प्रोसेस एक में क्लैश करते हैं तो फिर उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। तो भाई जाओ बच्चे को काउंसलर के पास भेजो और बता दो कि भाई माँ बाप तुम्हारे सही है, तुमको ये करना है। और ऐसा सही काउंसलिंग करने वाले बहुत कम लोग हैं कि जो पेरेंट्स को बाद में फीडबैक देते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा ये नहीं चाहता है, तो वो ये चाहता है तो आप उसको उसमें डालो, उसमें इंकरेज करो। ऐसे भी काउंसलर है बट वो बहुत कम है। वो ऐसे काउंसलर के पास अगर आप जाते हो तो आप बहुत सेफ जगह पे हो और आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बट जब आप थोड़े सा किसी का सुन के या पढ़ के जाते हो तो उसमें इतना क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए। मैं मेरा ओपिनियन बता रही हूँ, नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी काउंसलर और देयर फीस। जो सच्चे में अच्छे हैं वो फीस चार्ज करते तो इट इज नेचुरल कि तुम्हारा फैमिली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं अपना समझ के। तो वो उनका एक, ये क्या बोलते हैं ना, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है जो इनकम के लिए नहीं करते हैं बट एक समाज सेवा के लिए भी करते हैं, साथ साथ में अर्निंग भी करते हैं। तो ऐसे ठीक है बट क्रेडिबिलिटी बिना जाने जानना बहुत रिस्की है। और खास करके ये जो लड़कियां हैं 18, 19, 20 साल की, 21 साल की, जिनको अभी तक इतना कुछ नॉलेज नहीं है या जो कोई भी किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं रखती है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यू शुड बी एबल टू से नो ऑल्सो इफ यू डू नॉट एग्री विद सर्टेन थिंग्स। वो जब तक तुमको ना कहने की क्षमता नहीं आती है ना
तब तक आप कभी तरक्की नहीं करोगे। ना कहना ना चाहिए। ना करना आना चाहिए, जहाँ पे अब यू शुड बी वेरी फर्म। अगर तुमने किसी एक चीज हाथ में पकड़ ली, मुझे यही करना है, तो फिर 100% अपना दे दो। और अगर उसमें सक्सेस मिला ठीक है, नहीं मिला तो फिर डिप्रेशन में जाना और सुसाइड करना, ये उसका सोल्यूशन नहीं है। तो सोच समझ के जो भी कदम करना है कि भाई उसके प्रोज एंड कॉन्स जान लो। अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर पेरेंट्स को कोसना या डिप्रेशन में जाना ये और सुसाइड करना, उससे समस्या तो हल नहीं होती है ना, उल्टा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। पेरेंट्स डिप्रेशन में आते हैं, उनका प्रॉब्लम फिर क्रिएट होता है। बहुत उम्मीद होती है उनको। हम्म। ओके मैम, आप अभी आप 45 से 65 जितने भी आपका एज है, आपने आज तक लाइफ में आजकल हमारी ना बहुत ज़्यादा माइंडसेट चेंज हो गया है। हमें ना लीडर, हीरो, इन सब में ना फ़र्क नहीं पता चला है। मतलब हम कहते हैं कि सलमान खान हमारे हीरो हैं, वो एक एक्टर है, वो सही है, बट हीरो एक अलग हो जाता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा, मतलब कोई पर्सन जो अभी हैं या फिर लीडर थे कोई, तो बहुत आपको लाइफ में बहुत इंस्पायर किया? अभी लीडर ऐसे मैं नहीं बोल सकती। अभी मैं बोलना चाहूँगी कि बाला साहेब ठाकरे, वो बहुत ही आई मीन स्ट्रॉन्ग विचारों के थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए ही दे दिया था। और उन्होंने कभी कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ली, कभी सत्ता की लालसा नहीं की। उन्होंने एक पक्ष स्थापित किया जिससे महाराष्ट्र में जो मराठी लोगों को आई मीन बाहर किया जाता था, वहाँ पे मराठी लोगों को एक उन्होंने आई मीन एक ग्राउंड दिया कि हम भूमिपुत्र हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र है या मुंबई है, उसमें मराठी लोगों का भी इक्वल आदर होना चाहिए। और जब लैंग्वेज वाइज स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही अधिकृत राज्यभाषा होनी चाहिए। उन्होंने राज्यभाषा का दर्जा भी दिलवाया। उनकी गवर्नमेंट ने 12वीं तक मराठी कंपलसरी भी किया। तो ऐसे जो है अन्ना साहेब हजारे है समाज सेवक, उन्होंने क्या पर्सनली किया अपने लिए? कुछ नहीं किया। जो भी किया वो समाज के लिए किया। तो ऐसे जब लोग आएंगे ना हमारे सामने जो अपनी ही पीढ़ी के बारे में नहीं सोचेंगे। ओके मैम, ये हमारी पूरी टीम का क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन है। जब हम आपसे मिलने आए थे फर्स्ट टाइम, बहुत सारे टीचर्स फर्स्ट मीट में हमें समझ में आ जाता है, स्टूडेंट भी हम, सो फर्स्ट मीट में समझ आता है कि उनकी वाइफ्स कैसे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो बहुत ज़्यादा आपने आप फ्री नहीं थे उस समय, तभी आपने बोला कि अब बैठो। आपने हमारी स्टोरी सुनी, फिर आपको लगा कि हाँ ये कुछ करना चाहते हैं, फिर आप आगे आए, आपने बोला ठीक है मैं अपना पॉडकास्ट दूँगी। सो ये बहुत कम होता है। तो बस इतना क्वेश्चन था कि आप बचपन से इतने मतलब डाउन टू अर्थ हो कि कहीं भी पहुंच जाना है, ज़मीन से रहना है, बहुत प्यार से बात करना है। हमने कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर से बात की है। मैं कल्चर्स में क्रिएटिव एचओडी हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स देखे हैं, बट जो टीचर्स का वे होता है बात करने का, थोड़ा सा एटीट्यूड दिख जाता है और उनको लगता है कि लोग हमारी सुने। एक वे भी हो जाता है कि उन्हें बस बोलना आता है, सुनना नहीं आता है। लेकिन आप में बहुत अलग था। तो पहले से था या अभी आपकी एज हो गई तो आप चेंज? नहीं नहीं, मेरे साथ पहले से ही ऐसा ही है। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स कभी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बट मेरे स्कूल के हम 5 फ्रेंड का एक ग्रुप है। फॉर्चुनेटली हम लोग मुंबई में ही रहते हैं और अभी तक फ़ोन के कांटेक्ट में है। और उसमें से एक मैं जिक्र करना चाहूँगी, वीणा वर्ल्ड, जो वीणा पाटिल जिसके ओनर है, वो मेरी क्लासमेट थी। तो अभी भी उसके घर में गणपति, अभी उसने लास्ट ईयर से ही रखना शुरू किया, तो फर्स्ट उसने हमको इनविटेशन भेजा था। तो फिर अभी वो तो मतलब बहुत ही हाई फाई है, सोसाइटी में भी उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो हमको थोड़ा सा डर लग रहा था कि इतनी बैंड्राकुला कॉम्प्लेक्स में उसका खुद का घर है, तो हमने बोला भी कैसे जाए उसके घर पे। फिर सब ने बोला आज जाए कल जाए, 5 दिन का तो गणपति था। फिर मैं और मेरी फ्रेंड माधवी, हमने तो डिसाइड किया कि वो भी उधर ही आने वाली थी कुछ काम के लिए और मैं तो इधर से जा सकती थी। तो हमने एक टाइम डिसाइड किया, उस टाइम हम गए थे 10 मिनट से बाहर निकलने के लिए। लेकिन हम लोग उधर ही, उनका 8 बजे विसर्जन होना था, हम 5 बजे डॉट पे पहुंचे और 8 सवा 8 कभी बज के हमको मालूम नहीं पड़ा। और उसके फैमिली मेंबर से भी हम लोग फेमिलियर है, वो भी हमसे फेमिलियर है। वो तो मेरे घर में आ भी चुके हैं बहुत बार, अभी नहीं आई है बहुत सालों से, बट जब हम शुरू में दोस्त थे तब आते थे।
तो हमको इतना अच्छा लगा ना, अभी रोज हमारी बात भी नहीं होती या व्हाट्सएप मैसेज भी शेयर नहीं होते, और जो हम एक दूसरे को याद करते ना वही काफी हमारे लिए। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप। वही मैं बोलती थी कि 50 दोस्त नहीं है मेरे, या मेरे करियर में भी मुझे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, पर जो है वो अच्छे हैं, एक हो अच्छा। बस सस्टेनेबल है हमारा, कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, हमको शर्म नहीं आती है। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे पास आने का था, तो हमको थोड़ा डर लग रहा था, तो तूने एक दिन स्पेसिफाई किया था, क्योंकि उसके बहुत सारे पहचान वाले थे, तो उसने एक एक दिन एक के लिए रखा था, जैसे हमारे एक स्पेसिफाइड डेट रखा था, जो उस दिन पे हम लोग नहीं जा पाए। तो मैं बोली इसके लिए तो पहले तुझे व्हाट्सअप किया, भाई तू है क्या फ्री, तू है क्या घर पे, फिर तुमने बोला भाई ऐसे कैसे आप बोलते हो, आ जाओ। फिर हम लोग आ गए, आने के बाद लगा अभी क्या उसके घर में लेके जाऊँ, तो मतलब भगवान के लिए मैंने बुलाया, लेकिन हाई फाई घर के लोगों का, भगवान की तो हाई फाई प्रसाद भी हाई फाई होना चाहिए, तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो भी नहीं बुलाया होता तो भी चलेगा, और बहुत अच्छी बात हुई हमारी। और वो मतलब अभी भी मैं उसको फोन करूंगी तो मेरे से बात करेगी, चाहे दुनिया में किधर भी हो, तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। एक हो अच्छा। हाँ, मतलब अभी वो इतनी टॉप लेवल पे गई है ना, हाँ, मतलब एक स्टेबिलिटी है, उसको एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, उसके दोनों बेटे हैं वो भी डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स उसके इन-लॉ सब थे, पर हम लोग जो बैठ गए बातें करने के लिए, फिर वो गुरुजी बोले 8:15 बज गए, अभी आरती करो, विसर्जन में जाना है, फिर बोले चलो हम लोग अभी निकलते हैं। तो मतलब ये हमारा बहुत 5 जनों का ही ग्रुप है, पर बहुत अच्छा है। हाँ, लाइफ टाइम का भी, मतलब हमारी दोस्ती इतने दिन इतने साल से नहीं टूटी ना टूटेगी अभी। उसमें आप बोलेंगे कि साल में कितनी बार मिलते हो, तो साल में एक आध बार भी नहीं मिलते होंगे, क्योंकि सब लोग हम अपने अपने काम में व्यस्त हैं, बट कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज होगी तो जरूर शेयर तो होती है। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी वाइब हम लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे, और फर्स्ट पॉडकास्ट था हमारा, सो देखते हैं हमारी लाइफ कैसे जाएगी। All the best for your this venture, new venture, and you started from me. So मैं आपके लिए लकी साबित होनी चाहिए, ये Yes, मेरे ma'am. दिल से भगवान से प्रार्थना है, Okay. और आप लकी हो ही जाओगे, क्योंकि आप में जुनून भी बहुत है। हाँ मैम, वो यस। जुनून देखा, इसके लिए मैंने हाँ बोला, और उसके पहले मैंने आपको 100 सवाल पूछे थे। हाँ मैम, बहुत ज़्यादा, हाँ। 3-4 बार मिले। हाँ, क्योंकि मैं आपको हाँ। जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ तक इसमें जाना चाहते हैं, 1-2 एपिसोड करके छोड़ देना चाहते Yes, हो, ma'am. या आपके पास है बैकअप। आपने जब तीनों ने आके मुझे, चारों लोगों ने बोला बैकअप है, फिर मैं बोली अभी जाने दो, मेरा तो उसमें कोई फायदा नुकसान है नहीं, चलेगा तो भी आपकी नसीब, नहीं चलेगा तो भी आपकी, मुझे तो उसमें से कुछ बेनिफिट तो है नहीं, पर मैंने बोला जब ये मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मुझे इतना मान रहे, तो क्यों नहीं मैं बात करूँ, क्या जाता है। हमारा ट्राई था कि इतनी बड़ी नदी से थोड़ा सा पानी निकाल के। इतना मैं कोई नहीं होगा, मैं डाउन टू अर्थ और एक सिंपल कॉमन वुमन हूँ बस, बाकी कुछ नहीं है मेरे में, और विचार है वो अच्छे हैं बस, और दूसरों को समझने की ताकत मेरे में ज़्यादा है, ऐसा मैं गर्व से कह सकती हूँ। हाँ मैम, कह सकते हैं। कि बाबा दूसरे सामने वाले की नस पहचानना बोलते हैं ना, वो मेरे को अच्छी तरह से है, मेरी नस बहुत कम लोग पहचानते हैं, बट मुझे सामने, और मेरे फैमिली में ऑफकोर्स आप कभी भी मेरे हस्बैंड से मिलो, मेरे बच्चों से मिलो, आपको ये नहीं लगेगा ये अजनबी है, आप खाली बोलेंगे वो मैडम के स्टूडेंट है उनके कॉलेज से, वो आपको नहीं बोलेंगे, तो ऑफकोर्स अननोन पर्सन को तो आजकल दरवाज़ा खोलना भी बेकार है, वो बोलेंगे, फिर अगर उनको 2 माइंड से तो मुझे फ़ोन करके बोलेंगे अरे भाई ऐसा ऐसा है, खोलूँ क्या दरवाज़ा, फिर एक बार मैंने हाँ बोल दिया तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई अजनबी जगह पे आ गए, इतना आपका आदर सत्कार होगा कि जैसे आप बरसों से एक दूसरे को जानते हो, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे खाली मारे मेरा नाम लेके जाओगे तो वो सस्पिशियस रहेंगे, भाई बोलते हैं पर खोलूँ कि नहीं खोलूँ, एंड दैट इज ऑब्वियस, दैट हैज टू बी डन, ये तो मैं बोलती नहीं अपब्रिंगिंग, ये अपब्रिंगिंग कि सेल्फ प्रोटेक्शन तुम लोग करो, हर जगह पे तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, तो वो उनको मैंने दे दिया, उन्होंने अडेप्ट भी कर लिया है, तो अभी वो दुनिया में किधर भी जाए मुझे डर नहीं, कोई मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोले कि उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, मैं नहीं विश्वास करूँगी, बिकॉज मुझे मालूम है मेरे बच्चे क्या है, मेरे हस्बैंड को मालूम है मेरी वाइफ क्या है, मुझे मालूम है मेरा हस्बैंड क्या है, तो कोई ऐसे बहुत बार कोशिशें भी हो चुकी है, नहीं ऐसे नहीं, बट बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, कुछ नहीं हमारा बिगड़, आगे चल के भी कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपका भी अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट टू यू वंस अगेन। यस मैम, थैंक यू सो मच।